Good morning students, we will start our first lesson, functioning of a computer. Okay, so start from here. You have learned about the different parts of a computer. Do you know how they interact with each other? So the computer is an electronic machine which acts as an information processor. It collects information with the help of various devices and stores in it in different forms. Okay, let's learn more about how a computer functions. हमने जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने क्या क्या सीखा, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमने सीखे हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, वो भी हमने सीखा है. कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमने सीखा और वो कैसे वर्क करता है, उसके कौन से पार्ट्स हैं हमने डीपली सीखे थे. सो नेक्स्ट इज लेसन गोल्स है. बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल लर्न, you will able to explain the working of a computer and list the parts of a CPU. CPU के कौन से पार्ट्स है वो हमें सीखने को मिलेंगे. सो वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, फर्स्ट टॉपिक इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज मेड अप ऑफ 3 मेन इवेंट्स. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो साइकिल है वो कौन से 3 मेन इवेंट्स में है. तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल वी एड कर्ड, वाटर एंड सॉल्ट, दिस इज अ इनपुट्स, एंड टू अ मिक्सचर एंड churn them, so that is a processing, that is a process. So and last one is to make buttermilk, that is a output. So input, process and output. Okay, now next is information processing cycle. Next is input devices. Which are the input devices we will learn here. This is the first step when you feed information into the computer system. You use several input devices to feed the information. The data or information being fed includes numbers, text, sounds, images, etc. Some of the input devices includes कौन से हमारे input devices है. So keyboard, mouse and microphone are input devices. इससे हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इन कर सकते हैं. जैसे हमारा डेटा है, हमें लिखना है तो हम लिखते हैं किससे, कीबोर्ड से. तो कीबोर्ड से हम कोई भी हमारा डेटा वो इन कर सकते हैं. माउस से भी हम हमारा डेटा इन कर सकते हैं और माइक्रोफोन से हम जो भी बोलते हैं वो हमारी आवाज़, जो हमारी वॉल्यूम है, साउंड है, वो इन होता है. तो हम दिस आर द हमारे कौन सा है, इनपुट डिवाइसेस है. नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. दिस इज द लास्ट और फाइनल स्टेप. हमारा जो लास्ट और फाइनल स्टेप है वो कौन सा है, आउटपुट है. द कंप्यूटर गिव्स यू द आउटपुट और द रिजल्ट ऑन एनी ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस. Okay, output devices help you see and hear the information created and stored in your computer. Some of the output devices include कौन से हमारे, जैसे हमने input devices सीखे, हमारे यहाँ पर output devices कौन सा है. सो मॉनिटर हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले करता है, शो करता है. देन मॉनिटर इज अवर आउटपुट डिवाइसेस. स्पीकर से आवाज़, वॉल्यूम बाहर आती है, साउंड बाहर आता है. सो वो कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस. वाई? बिकॉज प्रिंटर से प्रिंट आउट होती है. सो दैट इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस. एंड लास्ट वन इज अ हेडफोन से भी आवाज़ बाहर आती है. सो दिस इज ऑल्सो our output device. So which are our output devices? Monitor, speaker, printer and headphones. Now let's learn about the processing device, the CPU, the main part of a computer, the brain of a computer. Without CPU we are not working on the computer. So we'll start from here. Parts of a CPU. Processing data includes calculation, interpretation, etc., which takes place in the central processing unit. CPU we learned in the last second standard. So of a computer, central processing unit means CPU. CPU is a short form and central processing unit is a full form. So just like the brain controls the human body, जैसे हमारा human body को हमारा brain control करता है, CPU controls the computer को कौन कंट्रोल करता है, CPU. It is the most important part of the system and consists of mainly. So main part of the computer है. Okay. So first one is the CPU, a small chip. जो हमें एक CPU बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है जो यहाँ पर है, दिस इज द मेन CPU नहीं है. हमारा CPU कितना होता है, मैंने सेकेंड स्टैंडर्ड में आपको बताया था कि यहाँ पर छोटा सा एक चिप है जो हमें CPU हमें बताता है. ये एक मेन CPU है. सो the motherboard, this is our motherboard, a green board on which the CPU chip is placed along with other parts. So
यहाँ पर हमारा CPU प्लेस्ड होता है मदरबोर्ड में. द CPU कैबिनेट कंटेन्स द मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई यूनिट एज द मेन पार्ट्स. द फॉलोइंग आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ CPU. CPU के कौन से 3 मेन पार्ट्स है? तो यहाँ पर है मेमोरी यूनिट, उसको हम MU, शॉर्ट फॉर्म हमारा है MU, कंट्रोल यूनिट CU एंड लास्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. ओके, MU, CU एंड ALU. तो मेन पार्ट्स कौन सा है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. द नेक्स्ट पेज इज मेमोरी यूनिट. फर्स्ट टॉपिक इज मेमोरी यूनिट. डेटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एज डिजिटल मेमोरी इज स्पेसिफिक पार्ट्स. फॉलोइंग स्टोरेज पार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पज. सो दे मे बिलोंग टू द प्राइमरी और द सेकेंडरी मेमोरी ग्रुप. यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है. तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट हम प्राइमरी मेमोरी सीखेंगे तो रैम एंड रोम, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. एंड सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, कंप्यूटर डिस्क और CD, शॉर्ट फॉर्म है C और D. CD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD एंड लास्ट वन इज अ पेन ड्राइव, जो हम अभी बहुत यूज़ करते हैं पेन ड्राइव का. सो quick bytes data storage allows you to use the same data multiple times as you do not have to enter it again. The next one is a types of computer memory. हमने यहाँ पर सीखा. First one is a primary memory. When being processed, the data is kept in the primary part of the memory unit. जब हमारा डेटा प्रोसेस होता है सबसे पहले वो कहाँ जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी में जाता है. In a computer, this usually consists of, तो कौन से है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. फर्स्ट वन प्राइमरी मेमोरी में हमने RAM रैम सीखा था. तो रैम में रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ द टेम्पररी मेमोरी. ओके, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी विच स्टोर्स द डेटा बीइंग यूज्ड बाय द वेरियस प्रोग्राम्स. अलग अलग प्रोग्राम्स में उसका यूज़ होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का एक पिक्चर भी हमें शो किया गया है. द नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी रोम, जो मैंने आपको पहले बताया था ROM. रोम इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी. इट इज अ बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी विच कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी हमने सीख लिया इसमें. तो अब हमें सेकेंडरी मेमोरी सीखना है. रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD एक्सेट्रा. द डेटा ऑन दिस डिवाइसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द CPU. डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करता है CPU. सेकेंडरी मेमोरी इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ शेयरिंग लार्ज एंड हैवी डेटा फाइल्स. ओके, हार्ड डिस्क का एक यहाँ पर पिक्चर है. DVDs आपने देखी हुई है. नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कंट्रोल यूनिट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द CPU. कंट्रोल यूनिट हमारा CPU का एक मेन पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड इन द कंप्यूटर. बहुत सारे जो ऑपरेशंस हम कंप्यूटर में होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में होता है. द कंट्रोल यूनिट सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. कंट्रोल यूनिट अपनी जो इंस्ट्रक्शन है वो किसे देता है? तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को देता है. इट मैनेज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग द डेटा. वो आगे काम कैसे करना है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को भेजता है डेटा अपना. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है नेक्स्ट. सो इसे हम ALU शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं. तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फुल फॉर्म एंड ALU इज अ शॉर्ट फॉर्म. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक, कंपैरिजन एक्सेट्रा. यहाँ पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है तो वो सारी चीज़ें इस वाले सिस्टम में होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में. इट इंक्लूड्स डिफरेंट नंबर्स, लेटर्स एंड और स्पेशल कैरेक्टर्स. और अलग अलग साइंस जो होते हैं हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स के लिए, वो सारे भी इसमें यूज़ होते हैं. देन फ्लैशबैक इज what we learned in this chapter. Computer is an electronic machine which acts as an information processor. Second one is the information processing cycle is made up of 3 main events. कौन से है?
तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। प्रोसेसिंग डेटा इंक्लूड्स कैलकुलेशन, इंटरप्रेशन एक्सेट्रा एंड टास्क प्लेस इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, okay, CPU of a computer. The following are the three main parts of a CPU. यहाँ पर three main parts कौन सा है, तो memory unit, control unit and last one is a arithmetic logic unit. Now we will start our exercise. Question number A, fill in the blanks is our first question. Though we will start from here. Question number 1, a mouse is an example of an dash device. mouse से हम अपना data अंदर add कर सकते हैं. So mouse is an input device. Now second one is the information processing takes place in the dash. information process कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, CPU में. Now third one is the dash sends instruction to a computer, arithmetic logic unit. तो control unit and memory unit, control unit में से memory unit के पास जाएगा और फिर arithmetic logic unit के पास जाएगा. Now next is fourth one, the data on dash and dash devices cannot be directly processed by the CPU. जो डेटा है इनपुट का और आउटपुट का वो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता है CPU में. Okay, now next is the dash is responsible for performing all logical and arithmetic operations. So ALU या फिर उधर आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो. ना क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर डिवाइसेस दिए हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस दिया गया है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा इनपुट है या आउटपुट है. माउस इज एन इनपुट डिवाइस. सेकेंड वन इज अ प्रिंटर. प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकलती है ऑन अ पेपर, सो that is the output device. Now next is the speaker. speaker से वॉल्यूम बाहर आती है, आवाज़ बाहर आती है, so speaker is also an output device. next one is a microphone. microphone में हम अपनी आवाज़ डालते हैं या फिर हम बोलते हैं, वो माइक्रोफोन में ऐड होता है, so microphone is input device. and last one is a keyboard. कीबोर्ड से हम अपना डेटा कंप्यूटर को, मॉनिटर को देते हैं, so keyboard is an also input device. So now question number C, answer the following questions in 2 or 3 sentences each. So first one is write the full forms of RAM and ROM. So first one is a RAM का full form है random access memory, and second one is a ROM. So ROM का full form है read only memory. So you have to write that answer also. Now question number C, second, what is the basic function of the arithmetic logic unit? Basic functions क्या है? Then multiplication, division, subtraction, addition, comparison. That is the main function of the arithmetic logic unit. Now question number 3, list the different types of computer memory. computer memory जो है हमारे पास, उसमें कौन से memory है, तो वहाँ पर है हमारे पास RAM, ROM, CD, DVD और pen drive also. So you have to write that. hard disk also. So you have to write that, and this is the exercise. और आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है. So this chapter is complete here. Thank you.